آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واض بعنوان ہارون کا طور اور ملک صدق کا طور کے تحت کرتے ہیں۔ 여러분과 함께 하나님 말씀 상고해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. ہم عبرانیوں کی کتاب کے 7ویں باب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عبرانیوں باب 7 آیت 11۔ 11절의 말씀 같이 보도록 하겠습니다. بس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اسی کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے۔ 멜기세덱의 반차를 쫓는 별다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐고 했습니다. لاوی کی کہانت اور ہارون کے طور کا ایک ہی مطلب ہے۔ 아론의 반차나 같은 말이 되겠습니다. ہارون لاوی اور پہلا سردار کاہن ہے، اسی لیے کتاب مقدس میں لاوی کی کہانت اور ہارون کا طور ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ 레위의 제사식분이라고 표현하기도 하고 아론의 반차라고도 이렇게도 표현합니다만 같은 어떤 뜻이 되겠습니다. تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے، اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے۔ 율법도 반드시 변혁하리라고 했습니다. شریعت میں تبدیلی آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبت کا دن اتوار میں بدل جائے۔ 안식일에서 일요일로 바뀌는 그런 어떤 율법이 아니라 اس کا مطلب ہے کہ کہانت ہارون کے طور سے ملک صدق کے طور میں بدل جاتی ہے۔ 그렇게 전환이 된다는 의미가 되겠습니다. دوسرے الفاظ میں پرانا عہد نئے عہد میں بدل جاتا ہے، صحیح؟ 바뀌게 된다는 그런 뜻이 되겠죠. ہمارے ایمان میں جس چیز کو یقینی طور پر جاننا ضروری ہے وہ ملک صدق کا طور ہے۔ 멜기세덱의 제사식분이 되겠습니다. ملک صدق کی کہانت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہارون کی کہانت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، تب ہم ملک صدق کے طور کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ 이해하게 되겠는데요. آپ میں سے بعض کے لیے جنہوں نے پہلی بار یہ سنا ہے، یہ موضوع مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اصطلاحات آپ کے لیے نئی ہیں، مگر ہم جاری رکھتے ہیں۔ 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب کہانت کی تبدیلی آتی ہے تو شریعت کی تبدیلی بھی لازم ہے۔ آئیں باب 8 آیت 7 دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، دوسرے الفاظ میں اگر پہلا عہد بے عیب ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 했습니다. دوسرا عہد کون سا ہے؟ 외에 두 번째 생긴 언약은 어떤 언약이죠? یہ نیا عہد ہے، صحیح؟ کیونکہ پرانے عہد یعنی ہارون کے طور میں نقص تھا، دوسرا عہد یعنی ملک صدق کے طور درکار تھا۔ 새 언약인 멜기세덱의 제사직분, 멜기세덱의 반차가 필요시 되었다라는 의미가 되겠습니다. آیت 8 سے جاری رکھتے ہیں۔ بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتی ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے کیا ایک نیا عہد باندھوں گا۔ 새 언약을 세울 것이다고 했습니다. جب ہم پرانے عہد اور نئے عہد کے درمیان تعلق کو سمجھتے ہیں تو ان دو عہدوں کی بنیاد پر ہم لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں کہ ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ 잘 그것을 말해줄 수가 있습니다. وہ نئے عہد کی ان تمام سچائیوں کو جن پر ہم عمل کرتے ہیں، جیسے کہ سبت اور فصح، اس طرح ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ پرانے عہد کی باتیں ہوں جو منسوخ ہو چکی ہیں اور جن پر عمل کرنا ضروری نہیں رہا۔ وہ اکثر اس طرح سے خوشخبری کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ 내용들을 많이 사용하고 있습니다. اگر ہم پرانے عہد اور نئے عہد یعنی ہارون کے طور اور ملک صدق کے طور کی مکمل سمجھ رکھنے میں ناکام رہیں تو شاید ہم ان کے فریب میں آ جائیں۔ 저들의 말에 یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حوا آزمائش میں پڑ گئی تھی جب وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت اور حیات کے درخت کا صحیح مفہوم نہیں جانتی تھی۔ 해방을 받을 수가 있습니다. چونکہ پہلے عہد میں نقص تھا، اس لیے خدا نے ہمیں کون سا عہد دیا تھا؟ 우리에게 주신 언약이 무슨 언약이라고요? نیا عہد۔ 라고 하셨고 아론의 چونکہ ہارون کے طور میں کوئی نقص تھا، اس لیے خدا نے ہمیں کس کا طور دیا تھا؟ 또 무슨 반차를 주셨다고요? ملک صدق کا طور۔ چونکہ لاویوں کی کہانت میں کچھ کمی تھی، اس لیے خدا نے ہمیں ملک صدق کے طور میں نئے عہد کی سچائی بخشی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ 우리에게 허락하신다는 이와 같은 뜻을 성경에서 알려주고 있습니다. آیت 9 سے جاری رکھتے ہیں۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔
इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे, और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो न की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इसराइल के गहराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके ज़हन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम न देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद न करूंगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। इब्रानियों अबवाब 7, 8 और 9 तसलसल में बयान करते हैं कि कैसे हम नए अहद के वसीला अबदी निजात हासिल कर सकते हैं, न कि पुराने अहद से जो मिट चुका है। 히브리서 7장, 8장, 9장 계속해서 지금 연결적으로 설명하고 있습니다. तो फिर हमें वाज़िह तौर पर नए अहद और पुराने अहद में फ़र्क करना चाहिए। 예언약과 새 언약을 जब सब्त की बात आती है तो 가릴 줄 알아야 되는데 बद शायद एक लफ्ज़ सबत से खुशखबरी में रुकावट डाल सकते हैं। वह पुराने अहद और नए अहद में फ़र्क किए बगैर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। 회방에 휘말릴 수가 있습니다. लेकिन पुराने अहद का सबत भी है और नए अहद का सबत भी। सही? 안식일이 있죠. एक सबत है जो हारून के तौर से ताल्लुक़ रखता है, और ऐसा सबत भी है जो मल्की सिद्क के तौर से ताल्लुक़ रखता है। ईद फस्ह के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। लवियों की कहानत में ईद फस्ह मनाई जाती थी, और यह मल्की सिद्क के तौर में मनाई जाने वाली ईद फस्ह भी है। 반차 속에서 이루어지는 유월절이 있죠. रस्म अदा करने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 의식이 다릅니다. लवी की कहानत यानी हारून के तौर में तमाम नजराने जानवरों की कुर्बानियां हैं। 이 제물은 짐승입니다. 짐승이 그 제물이 되었지만 इसके बरक्स मल्की सिद्क के तौर में तमाम नजराने मसीह का बदन है। 그리스도의 몸 그 자체가 바로 제사의 제물이었다는 사실을 रस्म अदा करने में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। 예배법이요. 제사 हम सबको इस बात को वाज़िह तौर पर समझना चाहिए। 이해하고 계셔야 되겠습니다. हमें यकीनन इस बात को समझना चाहिए कि जब खुदा ने कहा कि शरीयत मनसूख कर दी गई थी तो उसका मतलब था कि हारून का तौर यानी पुराने अहद की शरीयत मनसूख कर दी गई थी। उसका मतलब ये नहीं था कि नए अहद की ये आइन मनसूख कर दिए गए हैं। हमें वाज़िह तौर पर पुराने अहद और नए अहद में फ़र्क करना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि कहानत और रस्म मनाने के तरीके में दोनों कैसे मुख्तलिफ हैं। 구분해 두시게 되면 फिर जब कोई आपसे पूछे कि क्या सारी शरीयत मनसूख हो गई है तो 봉착했을 때 율법이 폐지되었다고 한다면 आप उसे वाज़िह जवाब दे सकते हैं कि जो शरीयत मनसूख की गई है 레위의 율법이요. वो मूसा की शरीयत यानी लावी की शरीयत है, जिसका ताल्लुक हारून के तौर से है। 하고 깨우칠 수가 있을 것입니다. 자, 그럼 हम खुरूज बाब 24 से देखते हैं कि लावियों की कहानत और मल्की सिद्क की कहानत किस तरह मुख्तलिफ है। 출애굽기 24장에서 살펴보도록 하겠습니다. खुरूज बाब 24 आयत 12। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ। 너는 산에 올라 ये कौन सा पहाड़ है? ये कुए सीना है। और वहीं ठहरा रहे, और मैं तुझे पत्थर की लोही और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। 내가 율법과 계명을 친히 기록한 돌판을 내게 주리라고 이렇게 말씀을 주셨습니다. वह मकाम जहां खुदा ने लावी की कहानत में यानी हारून के तौर में कुर्बानियों और नजरानों के ज़ाबितों का ऐलान किया था, कूही सीना था। 하나님께서 그 반포하신 장소가 시내산이었습니다. आए बाब 34 की तरफ जाते हैं। खुरूज बाब 34 आयत 1 में कहा गया है कि 4장 1절의 말씀 보도록 하겠습니다. फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लौहों की मानिंद पत्थर की 2 लौहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लौहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लौहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी, और सुबह तक तैयार हो जाना, और सवेरे ही कहाँ कोई सीना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी न आए, और न पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भीड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने न पाएं। और मूसा ने पहली लौहों की मानिंद पत्थर की 2 लौहें तराशें, और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लौहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कहाँ कुए सीना पर चढ़ गया। मूसा कुए सीना पर चढ़ गया और खुदा से शरीयत ली और उतर आया। 그럼 결국
खुदा ने लावी की कहानत यानी हारून के तौर की शरीयत का ऐलान कहाँ पर किया? 반차에 속한 율법을 선포해 주신 곳은 어디입니까? यही कोह सेना था। ताहम कोह सेना वह वाहिद जगह नहीं है जहाँ खुदा ने शरीयत का ऐलान किया है। खुदा ने नबूद की थी कि वही एक और मकाम पर भी शरीयत का ऐलान करेंगे। हम यसायाह बाब 2 देखते हैं। यसायाह बाब 2 आयत 3। बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हूँ और वही अपनी राहें हमको बताएगा 그 도로 우리에게 가르치실 것이라. और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत कहाँ से? सियोन से। 온다고요? 자, 좀 전에 पिछली आयत में हारून के तौर की शरीयत का ऐलान कहाँ पर किया गया था? कोह सेना पर। लेकिन यहाँ एक और शरीयत है, इसका ऐलान कहाँ पर किया गया है? 어디에서 선포되고 있습니까? इसका ऐलान सियोन में किया गया है। हारून के तौर और मलकिसिदक के तौर में ये फ़र्क है। 와 멜기세덱의 반차의 차이라고 볼 수 있겠습니다. अगरचा लफ्ज़ शरीयत एक ही है। 단어는 똑같습니다. 그러나 हारून के तौर की शरीयत और मलकिसिदक के तौर की शरीयत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नजराने मुख्तलिफ हैं, खुदा की बरक़ात मुख्तलिफ हैं और खुदा के काम मुख्तलिफ हैं। 이 다르고 하나님께서 허락해 주신 은혜가 다르고 역사가 다릅니다. हारून के तौर की तमाम कुर्बानियाँ नकल और अक्स हैं, जबकि मलकिसिदक के तौर की तमाम कुर्बानियाँ हकीकत हैं। 멜기세덱 반차에 속한 모든 제사의 제도는 실물이라고 보시면 되겠습니다. 실체라고 보시면 되겠습니다. 그래서 अगरचा यही इस्तिलाह सबत का दिन हारून के तौर और मलकिसिदक के तौर में इस्तेमाल होती है, पर इसे मनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। 구약의 모세 율법 속에서의 मूसा की शरीयत में वो बर्रे ज़िब्ह करते थे। वो सुबह और सहपहर को कुर्बानियों के औकात के मुताबिक बर्रों की कुर्बानी करते थे। 시간, 즉 제사 시간에 또 आज हम अपने बारे में क्या कहेंगे? क्या हम सबत के दिन को मनाने के लिए सुबह और सहपहर को बर्रे ज़िब्ह करते हैं? नहीं। हम सब्त के दिन रूह और सच्चाई से इबादत करते हैं। 그 모든 내용들을 대신하고 있지 않습니까? 예. 이것이 अगर आप इसे हारून के तौर और मलकिसिदक के तौर में फ़र्क के तौर पर लें तो ये आपके लिए दो शरीयतों यानी दो तौरों में फ़र्क करने में बड़ी मदद होगी। और वो मकामात जहाँ शरीयतों का ऐलान किया गया था मुख्तलिफ थे। सही, एक कोह सीना था और दूसरा सियून था। हम इब्रानियों बाब 5 आयत 5 की तरफ जाते हैं। 히브리서 5장 5절의 말씀 같이 보도록 하겠습니다. इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी। 스스로 영광을 취하심이 아니요. हारून की बात करें तो वो लावियों की कहानत में पहला सरदार काहिन था। 아론이었습니다. ताहम किताब मुकद्दस कहती है कि मलकिसिदक के तौर के सरदार काहिन यसू मसीह हैं। 성경은 우리에게 알려주고 있습니다. आयत 5 दोबारा देखते हैं। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनांचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू 낳았다 하시고 또 이와 같이 다른데 말씀하시되 내가 영원히 क्या मलकिसिदक के तौर पर अबद तक काहिन है। 제사장이라 하셨으니 उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने 그가 아들이 दुख उठा उठा कर फरमानबरदारी सीखी 하고 있죠. 받으신 고난도 और कामिल बनकर अपने सब फरमानबरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। 자기를 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 और उसे खुदा की तरफ से क्या मलिकिसिदक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। 칭하심을 받았느니라고 했습니다. 결국 जब हम मलिकिसिदक के तौर में खुदा की इबादत करें तो ये अबदी इबादत और मुकम्मल खिदमत होगी। 영원한 예배가 되고 온전한 예배가 된다는 의미가 되겠습니다. 먼저 पैदाइश बाब 14 में हम मलिकिसिदक का ज़ुहूर देखते हैं और ये भी देखते हैं कि मलिकिसिदक ने किस तरह खुदा से बरक़ात मांगी थी। 하나님께 축복을 간구하는 제물로 삼았는지 우리 पैदाइश बाब 14 आयत 17। 14장 17절입니다. और जब वो किदर लामर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर पहरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तिकबाल को सुवी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया। 영접하였고 और मलिकिसिदक सालिम का बादशाह कैसी कुर्बानी लाया? 나왔습니까? रोटी और में लाया, और वो 가지고 나왔으니
그는 कौन? 지극히 वो 높으신 누구라고 했습니까? खुदा ताला का काहिन था। 사장이었더라고 했습니다. खुदा के काहिन के तौर पर उसे खुदा की इबादत के लिए जानवरों का खून पेश करना चाहिए था। 제사를 하나님께 올려야 될 이와 같은 입장인데 लेकिन मलिकी सिद्क मुनफरिद था। वो अब्राहम को बरकत देने के लिए ख़ास नजराने लाया था। 가지고 나와서 아브라함에게 축복을 빌어 주었습니다. वो क्या थे? वो रोटी और में थे। मलिकी सिद्क ने अब्राहम को रोटी और में से बरकत दी थी। 축복을 빌어 주었습니다. 자, 그렇다면 तो फिर खुदा ने क्यों वजाहत की कि यसू मसीह मलिकी सिद्क के तौर के सरदार काहिन हैं? 예수 그리스도를 मलिकी सिद्क के बारे में मत्ती बाब 26 से और मुतालहा करते हैं। 해 주셨는지 마태복음 우리 26장으로 한번 잠시 말씀 살펴보도록 합시다. मत्ती बाब 26 आयत 17। और ईद फितीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? 예배하기를 원하시나이까라고 했습니다. हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये ईद फसह मनाने का मंजर है। जैसा कि हमने इन अल्फाज को कई बार पढ़ा है, तो हम आयत 26 की तरफ हैं। 보도록 하겠습니다. 26절로 넘어갑시다. जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर, 또 잔을 가지사 사례하시고 इस प्याले में क्या है? मैं पैदाइश की किताब में हमने कहाँ रोटी और में देखी थी? 창세기 어디에서 봤습니까? कौन रोटी और में के नजराने लाया था? 제사 제물이었습니까? मलिक सिद्क ये नजराने लाया था। 제사 제물을 और अब कौन बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा मलिक सिद्क ने किया था? यीशु रोटी और मैं के साथ रस्म अदा कर रहे थे। 제사를 지금 집전하고 계십니다. जब वह खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर, जो ईद फसह की में पर मुश्तमिल है, शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वह अहद का खून है जो बहुतीरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라고 했습니다. आप सब, अब क्या ये बात समझ में आती है कि यसू को मलिक सिद्क के तौर का सरदार काहिन क्यों कहा जाता है? 수긍이 되십니까? हम मत्ती बाब 26 और पैदाइश बाब 14 आयत 17 के मनाजिर में मुमासलत पा सकते हैं, क्या हम नहीं पा सकते? 유사성을 발견할 수 있는 부분이 있지 않습니까? उन्होंने कौन से नजराने इस्तेमाल किए थे? उन्होंने उन्हीं नजरानों यानी रोटी और मैं कवा इस्तेमाल किया। किताब मुकद्दस कहती है कि यीशु को खुदा ने मलिक सिद्क के तौर का सरदार काहिन मुकर्रर किया था। 묻었다고 이렇게 성경은 우리에게 말하고 있습니다. तो फिर यीशु ने रोटी और मैं के साथ क्या किया था? 예수님께서 무엇을 하셨는가? हम लूका बाब 22 पर जाते हैं और इब्रानियों की किताब से चंद सवालों के जवाबात मालूम करते हैं। 몇몇 가지 숙제를 우리 성경을 통해서 알아보는 시간 가져보겠습니다. लूका बाब 22 आयत 7। और ईद फितीर का दिन आया जिसमें फसह ज़ब्ह करना फ़र्ज था। 예수께서 베드로와 요한을 보내시며 가라사대 और यीशु ने पितरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जिस तरह मत्ती की इंजील में ईदी फसह की तैयारी लूका की इंजील में भी दर्ज की गई थी, तो हम आयत 19 की तरफ जाते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में कौन सा अहद, नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मलिक सिद्क के तौर में कायम किया जाने वाला अहद नया अहद है और हारून के तौर में कायम किया जाने वाला अहद पुराना अहद है। 예언약이라고 볼 수 있겠습니다. किताब मुकद्दस कहती है कि पुराना अहद मिट रहा था, लेकिन नया अहद अबदी है और इसकी कहानत एक दायमी कहानत है। 갈리지 않는 제사의 직분이라고 이렇게 성경은 언급하고 있습니다. हम इब्रानियों बाब 10 पर जाते हैं। इब्रानियों बाब 10 आयत 18। 말씀 보도록 하겠습니다. और जब इनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। 제사 드릴 것이 없나니라고 이렇게 표현되어 있습니다. 자, 이러니까 제사 इस आयत को इस्तेमाल करते हुए फरीब देने वाले कहते हैं, देखो अब गुनाह की कोई कुर्बानी नहीं रही, इसलिए हमें अब किसी इबादत की ज़रूरत नहीं है। ईदी फसह या सब्त मनाने का क्या फ़ायदा है? 있지 않느냐? फरीब देने वाले यूं झूठ बोलते हैं, वो मकारी से हम पर बुहतान लगाते हैं।
भाइयों और बहनों, आए हम इब्रानियों बाब 10 आयत 1 देखते हैं, तब हम इसका वाज़ेह जवाब हासिल कर सकते हैं। 거기에 대한 답을 금방 찾을 수가 있습니다. क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागाह गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती। 그럼 मूसा की शरीयत यानी हारून के तौर से हम कामिल नहीं बन सकते। 결단코 우리를 온전하게 할 수가 없습니다. जानवरों के खून से हमारे गुनाह मुकम्मल तौर पर मुआफ़ नहीं हो सकते। जानवरों के खून से हमारी निजात कामिल नहीं हो सकती। 구원을 완성할 수가 없는 것입니다. 그러니까 그 मसीह जो जानवरों के खून की हकीकत हैं कि ज़मीन पर आकर अपना खून बहाने के बाद ही हमारी मुखलसी को कामिल बनाया जा सकता है और गुनाहों की मुआफ़ी मुकम्मल हो सकती है। 삶이 완성이 될 수 있다는 그런 의미가 되겠습니다. इसीलिए यह कहा जाता है कि हारून के तौर से कामिलियत हासिल नहीं की जा सकती। 될 수가 없다고 했습니다. आयत 2 देखती हैं, वरना उनका गुजराना मौकूफ़ ना हो जाता, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार न ठहराता, 거치지 아니하였으리요. बल्कि वो कुर्बानियाँ साल बह साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि क्या ये 소와 मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे? लवी की कहानत के ज़रिए यानी मूसा की शरीयत के ज़रिए हमारे ये सब गुनाह दूर नहीं हो सकते। 모든 죄가 यह मुमकिन नहीं कि गुनाहों को दूर करे। क्यों? 없이 하지 못한다. क्योंकि यह नक्ल व अक्स है। 이건 하나의 어떤 모형이고 그림자이기 때문에 अक्स हकीकत का किरदार पूरी तरह अदा नहीं कर सकता। 할 수는 없습니다. अक्स से हम हकीकत की सूरत व शक्ल का महज अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़र्ज करें कि रोटी का एक अक्स है। 형태라고 생각해 봅시다. चाहे आप अक्स को कितना ही खाएं, क्या आप सैर हो सकते हैं? 있습니까? हरगिज़ नहीं। सैर होने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें असल रोटी खानी है, 배가 부르죠. या हमें नहीं खानी? गुनाहों की मुआफ़ी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। 모형 속에 있는 अक्स और नकल की कुर्बानी के वसीला गुनाहों को दूर करना नामुमकिन है, इसलिए मलिक सिद्क का तौर ज़ाहिर हुआ। 제사 제도가 그래서 나오게 된 것입니다. जैसे कि कहानत बदल गई है, अब मूसा की शरीयत की कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं रही। 우리는 이제 더 이상 이 지상에서는 행할 필요가 없다라는 इब्रानियों बाब 10 का मफहूम ये है। 입장에서는 기록하고 있습니다. आयत 5 पर एक नज़र डालते हैं। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। 한 몸을 예비하셨도다. 이제 यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हो गए थे। 예수심으로 말미암아서 구약의 양이나 तो फिर क्या हमें अब भीड़ों या बकरियों जैसे जानवरों का खून बहाने की ज़रूरत है? 이와 같은 의식이 우리에게 더 필요하겠습니까? हमें अब ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। 필요치가 않습니다. ताहम खुदा के अहकाम की मुखालफत करने वाले इस एक आयत का जिक्र करते हैं कि देखो, क्या ये नहीं लिखा कि गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही? 않느냐라고 이렇게 얘기를 하는데 क्या वो सही हैं? 그럴까요? ये पौलुस रसूल है जिसने इब्रानियों की किताब लिखी थी। बुलुस रसूल जहाँ कहीं गया, उसने मल के सिदक के तौर को ये कहते हुए जाहिर किया कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। 하고 다녔습니다. ये वो कुर्बानी है जो हमें गुजरानी है। ये वो इबादत है जिसे हमें करना है। हमें अब हारून के तौर की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि यसू के आने तक मल के सिदक के तौर की इबादत करनी है। 또 이건 계속 पौलुस रसूल ने इस पर जोर दिया था। 예배닫고 이렇게 강조를 했습니다. पहला कुरिन्थियों किसने लिखा था? इब्रानियों की किताब के बारे में क्या कहेंगे? पौलुस रसूल जिसने कहा अब गुनाहों की कोई कुर्बानी नहीं रही, यहाँ बहुत जोर देता है कि हमें कुर्बानी करनी चाहिए। 굉장히 지키라고 강조하고 있습니다. हमें समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। उसका मतलब था कि हमें हारून के तौर में गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही। 더 이상 필요가 없습니다. हारून का तौर मल की सिदक के तौर की महज नकल और अक्स था। 세계적인 어떤 제사 제도는 이제 실물이 왔기 때문에 चूंकि हकीकत आ गई थी, इसलिए हमें नकल की ज़रूरत नहीं रही। 필요가 없다는 의미가 되겠습니다. 우리 आहें पहला कुरिन्थियों बाब 11 देखती हैं। 1장을 통해서 보도록 합시다. पहला कुरिन्थियों बाब 11 आयत 23। क्योंकि ये बात मुझे किससे? खुदावंद से पहुंची। उसने कहा कि जो उसे खुदावंद से मिला वो उसने उन्हें पहुंचा दिया। अब आए हम गौर से देखें कि वो अब उन्हें किया पहुंचा रहा है।
खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली 떡을 가지사 축사하시고 और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करूं। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करूं, इसका क्या मतलब है? क्या हमें इसे मानना है या नहीं? हमें इसे मानना और अमल में लाना चाहिए। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? उन्होंने हमें ये करने को कहा, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो, जब तक वो ना आए। इस रोटी को खाने और इस प्याले को पीने से मुराद एक खास इबादत है। ये क्या है? ये ईद फसह की इबादत है। इससे मुराद ईद फसह है। जब पौलुस रसूल ने कहा, अब गुनाहों की कुर्बानी नहीं रही, तो क्या उसका मतलब ये था कि हमें ईद फसह मनाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, उसका मतलब ये नहीं था कि नए अहद की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन उसका मतलब था कि हमें पुराने अहद के वसीला गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने के तरीके की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब हमें किस किस्म की इबादत बख्शी गई है? मलिक सिद्क के तौर की इबादत। उस इबादत का तरीका कब तक माना जाना चाहिए? जब तक वो ना आए। इसका मतलब है कि हमें बाकायदगी से इसे मनाना चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें इसे मनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक और आयत देखते हैं, यूहन्ना बाब 13 आयत 15। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि क्या जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। क्या फसह एक कुर्बानी है या नहीं? खुरूज की किताब के मुताबिक ये लिखा है कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है। ये खुदा की कुर्बानी है। यीशु ने फसह मनाने का नमूना कायम किया था। फसह मनाने से पहले उन्होंने पहले कौन सा नमूना कायम किया था? उन्होंने अपने शागिर्दों के पांव धोने का नमूना कायम किया था। आइए देखते हैं कि इस मंजर में क्या हुआ था। आयत 4, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रूमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रूमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमून पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांवों अबद तक कभी धोने न पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे न धोऊं तो क्या होता है? तू मेरे साथ शरीक नहीं। हत्ता कि सिर्फ पांव न धोने पर भी यीशु ने कहा, तू मेरे साथ शरीक नहीं। उनका मतलब था, तू निजात नहीं पा सकता। पौलुस रसूल ने कहा, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। उसने वैसा ही किया जैसा उसे खुदवान से पहुंचा था। पौलुस रसूल ने कहा कि यीशु के आने तक हमें इसे मनाना चाहिए। ऐसा मंजर हम और कहाँ देख सकते हैं? हम पहला कुरिन्थियों की किताब बाब 5 पर एक नज़र डालते हैं। कुरिन्थियों की किताब यीशु के जी उठने और आसमान पर उठाए जाने के तवील अरसे बाद लिखी गई थी। पहला कुरिन्थियों बाब 5 आयत 7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लूता कि ता जह गुंधा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम क्या ईद करें। ये कौन सी ईद है? ये ईद फसह है। किताब मुकद्दस का एक और तर्जुमा कहता है, आओ हम ईद फसह मनाएं। अगर हम खुदा के कवानीन व ज़वाबित को न माने तो क्या कोई मसला नहीं होगा? हमें इन्हें ज़रूर मानना चाहिए। सही, बैलों और बकरों के खून से गुनाहों की मुआफ़ी की रस्म ख़त्म हो गई है। पुराने अहद की शरीयत अब ख़त्म हो गई है। चूँकि हम इसके वसीला गुनाहों की मुआफ़ी हासिल नहीं कर सकते, मसीह जो हकीकत हैं ज़मीन पर आए। इसलिए हमें मसीह की कायम करदा गुनाहों की मुआफ़ी की शरीयत को मानना चाहिए।
मती बाब 5 में भी लिखा है, ये न समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि क्या करने? 어떻게 하러 왔다고요? बुरा करने आया हूँ। 이와 같이 오셨다고 했습니다. अगर आप खुदा की कुर्बानी का मफहूम नहीं जानते और हारून के तौर और मल्क सिद्क के तौर में इम्तियाज़ नहीं करते, तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप किसकी इबादत की शरीयत पर अमल कर रहे हैं, हालांकि आप आज फसह और सब्त मना रहे हैं। 예배법을 지금 다루고 있는지를 이해하지 못하는 이런 मैंने ऐसा बुरा हाल देखा है, इसलिए मैं आप मुखलिसाना तौर पर आप बता रहा हूँ। आखिर में मैं आपसे कहता हूँ कि जिस सच्चाई को आप थामे हुए हैं, हरगिज़ न छोड़ें कि आप आसमान की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल हों। 끄덕끄덕 부탁드립니다. मैं आज का वर्ज़ ख़त्म करना चाहूँगा। खुदा की तरफ से आप पर फजल हो। आपका बहुत शुक्रिया।